Assalamu alaikum students. I'm your principal course instructor Miss Anika Said Zia from University of Education Bank Road Campus Lahore, and the course code of your subject is FINE 4134. And first we will have a look on your course outline. The first topic is introduction, and then there is looking back to the past. Then there is topic monochromatic tonal painting. Then the topic is importance of symbolic elements, practical assignments on compositions, and then there will be preliminary sketches. Then there is a topic painting on myself, and then there is a topic in which you will make a master copy using a mirror, and you will not use a photograph for this assignment. And then there is a topic introduction project on color harmony, and then there is modern concepts, and then there is a topic on social thoughts in which you will paint self-portrait using palette knife technique. Then there is a topic on after World War II, reclined and foreshortened figure pose. Then you will make color, shape and composition. Then there is portrait painting. And then the last topic will be the self-portrait from mirror or trade painting. So today we are going to discuss the lecture number 18, and your topic is visual symbols in self-portraits. And it is your practical assignment in which you will paint a self-expressive self-portrait along with visual symbol. It's up to you. You can use more than one symbol, and you can also use just one symbol as you want, but it should be self-expressive, and the idea which you want to convey, it should represent that specific idea. जो भी आप सिंबल यूज़ करेंगे वो सिंबल जो है आपके आइडिया के साथ रिलेट करना चाहिए, विजुअली भी एंड कॉन्सेप्चुअली भी. Visual symbols in self-portraits. Visual symbols are representations of direct reality which comes in form of signs and symbols. So जो आपके visual symbols हैं basically वो रियलिटी बेस्ड ही होते हैं, बट आप उसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं और डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स के थ्रू आप एक वो आइडिया जनरेट कर रहे होते हैं. व्हाट इज़ अ पोर्ट्रेट? आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन usually shows just one person. Face and expression is dominant, intent to display likeness, personality and mood of the person. So these are the basic characteristics of a portrait. Often shows a person looking directly into a camera to most successfully engage the audience, used to document historical figures. सो अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें, जो सिंपल पोर्ट्रेट है जो कि हमें कन्वेंशनली भी नज़र आता है, हिस्ट्री में भी उसका पर्पस रहा है कि आप उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं हिस्टोरिकल फिगर्स की, स्पेशली इन दैट टाइम पीरियड जब कैमराज नहीं थे, देयर वाज नो टेक्नोलॉजी. तो उस टाइम पीरियड पे इसकी बहुत वर्थ थी. स्पेशली पोर्ट्रेट पेंटिंग वाज वेरी फेमस, स्पेशली इन द मुग़ल आर्ट, इन द मुग़ल कोर्ट आर्ट. अगर आप मिनिएचर पेंटिंग्स देखें मुग़ल एरा की, तो उसमें जो डिफरेंट एम्परर्स हैं, दे यूज टू कमीशन देयर आर्टिस्ट टू पेंट देयर डेली लाइफ सीन्स. दे यूज टू पेंट डिफरेंट फेस्टिविटीज़, डिफरेंट इवेंट्स ऑफ देयर कोर्ट्स एंड लाइव्स. इवन जब एम्परर्स अपने हंटिंग के लिए भी जाते थे या कहीं ट्रैवल करते थे, तो अपने साथ वो आर्टिस्ट को ज़रूर लेके जाते थे, और ड्यूरिंग जर्नी अगर उन्हें कुछ अनयूजुअल या कोई यूनिक बर्ड नज़र आता था तो उसको फ़ौरन वो जो आर्टिस्ट होता था वो उसको कैप्चर करता था, पोर्ट्रे करता था, और उसको एक एल्बम की फॉर्म में वो लोग सेव करते थे. सो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि पोर्ट्रेट्स की बहुत ज़्यादा वर्थ थी. और तो इस तरह से हमें पता चलता है कि पोर्ट्रेट जो है उसको डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हम किस तरह से देखते रहे हैं. और पोर्ट्रेट तो जस्ट एक बेसिक आपको बता दिया कि उसमें फ़ीचर्स हैं, और उसमें एक पर्सनालिटी की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है. और बट हाउ टू डेवलप कॉन्सेप्ट, हाउ टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, आप उसको उसके अंदर उसको कॉन्सेप्चुअली कैसे डेवलप कर सकते हैं. तो
तब बात आती है कि आप यू कैन यूज़ डिफरेंट सिम्बल्स, यू कैन यूज़ डिफरेंट कलर्स, सो यू कैन यूज़ डिफरेंट मोटिव्स. तो इन एलिमेंट्स के थ्रू यू कैन यूज़ डिफरेंट टेक्सचर्स इवन टू डेवलप सम कॉन्सेप्ट इन योर पोर्ट्रेट. बिकॉज पोर्ट्रेट को कलर जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं. आप रफ टेक्सचर के साथ भी जो है अप्लाई करते हैं, आप पैचेस के साथ अप्लाई करते हैं, और डिफरेंट स्टाइल्स हैं उसको पेंट करने के. तो हमें जितनी भी आर्ट मूवमेंट्स मिलती हैं, चाहे वो इम्प्रेशनिज्म है, चाहे वो पॉइंटलिज्म है, या एक्सप्रेशनिज्म है, रियलिज्म है, तो हर मूवमेंट के पीछे जो है, हर मूवमेंट में पोर्ट्रेट्स भी पेंट हुए हैं. बट जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग था वो स्पेसिफिक रूल्स को और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो पोर्ट्रे करता था. और वो जो पोर्ट्रेट्स पेंट हुए हैं उनको उन्हीं रूल्स के अंडर देखा जाता था, उस स्पेसिफिक आर्ट मूवमेंट के जो रूल्स थे या उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप कह सकते हो, स्टाइल ऑफ पेंटिंग के. आज हम जो चीज़ स्टडी करेंगे उसमें है कि आप किस तरह से पोर्ट्रेट्स को सिंबल्स के थ्रू जो है एक्सप्रेस कर सकते हो, उसके अंदर आइडिया कैसे डेवलप कर सकते हो. ठीक है, अगर एक पोर्ट्रेट है उसके साथ अब एक सिंबल आप यूज़ करते हो, तो वो सिंबल रिप्रेजेंट करेगा कि आइदर द मूड ऑफ द फिगर इज़ हैप्पी और सैड. क्या चीज़ है जो रिप्रेजेंट हो रही है उस फिगर के बारे में. In the Renaissance in Europe, two new technologies emerged which made the self portrait as we know it possible: the technique of oil painting, capable of producing an extraordinary illusion of reflected light, and a minutely observed human presence. The secret of making mirrors of crystalline glass, the first reflective surface capable of accurately capturing and reflecting the human gaze. Some early self portraits were simply called a portrait made in a mirror. So, जैसे हम कैमरा की बात करते हैं कि कैमरा वॉज नॉट इन यूज़ एट दैट टाइम, स्पेशली इन रेनेसांस. तो मिरर्स का भी जो है इन्वेंशन वो भी काफ़ी देर बाद हुआ है. जब मिरर्स भी नहीं थे तब भी लोग जो हैं वो अपने पोर्ट्रेट पे और पेंटिंग पे जो है वो रिलाई करते थे अपने फेस को देखने के लिए, आपकी जो फीचर्स की डिटेल्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए और उनको समझने के लिए, when there was no such kind of thing like mirrors or cameras were invented. So, using visual symbols and metaphors to express something about yourself. Using visual symbols and metaphors to express something about yourself. इसके अंदर हम देखते हैं फ्रीदा कालो, हमें डिफरेंट आर्टिस्ट मिलते हैं हु हैव यूज्ड डिफरेंट सिंबल्स इन देयर पेंटिंग्स. और आजकल कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में भी हमें मिलते हैं, प्रेजेंट टाइम में भी हमें इस तरह के बहुत से आर्टिस्ट नज़र आते हैं. पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी हैं, वेस्टर्न आर्टिस्ट भी हैं हु आर यूजिंग डिफरेंट symbolic elements in their paintings with specific colors, with their specific meanings. So Frida Kahlo was a very famous female artist. Uh, she was a Mexican artist, and Thinking of Death is a very famous painting of her. So यहाँ पे आप देख सकते हैं एट द राइट साइड देयर इज़ अ पेंटिंग लिटिल डियर बाय हर, और ये फ्रीदा कालो के सेल्फ पोर्ट्रेट्स ही हैं. और ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी a dead hummingbird hanging in a form of necklace, and at the top of the painting you can see uh, two insects and moths hovering over her. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सिंबॉलिक हैं, ये ब्लैक कैट और ब्लैक मंकी स्पेशली. तो फ्रीदा कालो की अगर लाइफ को हम देखें, शी हैज़ पास थ्रू various traumas and various ups and downs in her life, in her married life especially. And she has also suffered from a very severe accident in her life, जिसकी वजह से उसकी बैकबोन जो है डैमेज हो गई थी, एंड शी वॉज अनएबल टू वॉक. एंड थ्रू आउट हर लाइफ शी हैज़ स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन बेड. एंड उसी के ऊपर उसने जो है अपना कैनवस सेट कर लिया था, एंड शी यूज टू पेंट while lying on the bed. So
वो जितनी भी एग्नी और पेन हमें उसकी पर्सनल लाइफ में थी और उसकी मैरिड लाइफ में थी, और जितने भी उसने ऑपरेशंस सर्जरीज हुई थी उसकी, और जितनी भी उसने पेन सफ़र किया था उसको, तो वो चीज़ हमें फ़रीदा खालो के इमेजेस में नज़र आती है। और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिंबल्स शी हैज़ portrayed that sadness in her life. Here is another painting by a famous painter, Edward Munch. एडवर्ड मंच जिसकी बहुत फेमस पेंटिंग है द स्क्रीम, और सेल्फ पोर्ट्रेट विद अ सिगरेट। सो हर हमें जो पेंटिंग मिलती है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, जैसे कि ये पेंटिंग है आर्टिस्ट की, तो इसमें आर्टिस्ट हैज़ क्रिएटेड अ स्पेसिफिक मूड, especially with the help of texture and with the use of chiaroscuro effect, and he has used an element of cigarette in it. So आर्टिस्ट ने, डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को यूज़ किया हुआ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी पेन को और अपने इमोशंस को। So this is another painting by Paul Gauguin. Paul Gauguin was a very famous painter of movement expressionism, और एक्सप्रेशनिज्म में आप देखते हैं कि हमें बोल्ड जो हैं कलर्स नज़र आते हैं और अनयूजुअल कलर्स नज़र आते हैं, नॉन रियलिस्टिक। और एज यू कैन सी इन द परस्पेक्टिव ऑफ दिस पेंटिंग, क्राइस्ट हैज़ बीन पेंटेड इन येलो कलर, सो विच इज़ अनयूजुअल, क्योंकि आपको जो एक येलो कलर है वो बॉडी में नज़र नहीं आता है। दिस इज़ नॉट अ फ्लैशी टोन, बट आर्टिस्ट हैज़ पेंटेड इट इन द पेंटिंग। तो हमें डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं जो आर्टिस्ट ने अपने उसके लिए यूज़ किए हैं, और उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेट किया है, बिकॉज येलो कलर जो है, येलो एंड गोल्डन्स जो हैं वो, गोल्ड की जो टोन्स हैं वो होप के साथ और एक समर के साथ, समर्स के साथ उसको रिलेट किया जाता है। तो उसके अंदर हमें एक होप का और एक स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट नज़र आता है। दिस इज़ द पेंटिंग बाय विंसेंट वैन गॉग, और ये इसका सेल्फ पोर्ट्रेट है व्हेन ही हैज़ कट डाउन हिज ईयर। सो ये जो पेंटिंग है ये आर्टिस्ट की सफरिंग को और उसकी साइकोलॉजिकल जो उसका ट्रॉमा था, जो इश्यूज थे उसके विद विच ही वाज डीलिंग एट दैट टाइम, तो उन इश्यूज को रिप्रेजेंट करती है ये पेंटिंग आर्टिस्ट की। बिकॉज दिस इज़ द ओनली पेंटिंग जिसके अंदर हमें आर्टिस्ट का वो जो कटेड ईयर है वो नज़र आता है, बैंडेज उसका ईयर नज़र आ रहा है हमें इसमें। देर इज़ अनदर famous Pakistani painter, Rahat Naveed Masood, and she has painted her self portraits with different symbols. तो हमें यहाँ पे भी एक सिंबल नज़र आ रहा है, और बॉटल्स के साथ जो है वो फीमेल्स को भी रिप्रेजेंट किया गया है। जो बॉटल्स के कर्व्स होते हैं और जो उसकी फॉर्मेशन होती है उसको अगर हम हिस्ट्री में देखें तो द ग्लास बॉटल्स हैज़ बीन यूज्ड, especially the wine bottles have been used to represent the females। और हमें यहाँ पे एक फ्लावर का सिंपल भी नज़र आ रहा है, बिकॉज एक फ्लावर जो है वो भी एक फ़ीमेल के करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट यूज टू बी फ्रिजाइल, इट हैज़ फ्रेगनेंस, it has delicacy, and it has beauty as well। और it also linked with the growth, ठीक है, एक लिविंग आप कह सकते हैं एक लिविंग बीइंग है। सो उसमें एक ग्रोथ का एलिमेंट भी होता है जो कि फीमेल के साथ भी रिलेट होता है, लाइफ के साथ। सो दिस इज अनदर पेंटिंग बाय द सेम आर्टिस्ट, एंड हियर यू कैन सी at the back side of her head a hollow kind of formation जो कि स्पिरिचुअलिटी को और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है, और आपकी पायसनेस को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने बुद्धिज़्म को पढ़ा है तो बुद्धा के स्कल्पचर्स के बैक साइड पे भी आपको ये हालो का सिंबल नज़र आता है। और अगेन जो रोज़ है वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेगनेंस को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर डिफरेंट सिम्बल्स शी हैज़ पेंटेड इन दिस पेंटिंग। इन एट द बॉटम यू कैन सी देयर इज़ अ लॉक अलॉन्ग द की, तो एक चीज़ है जिसको अनलॉक किया गया है, ठीक है, और वो आर्टिस्ट के जो इमोशंस हैं वो भी हो सकते हैं।
सो आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट होता है। जिस जिस पेंटिंग के अंदर सिंबल्स यूज़ होते हैं वो डायरेक्ट पेंटिंग नहीं होती, वो इनडायरेक्ट होती है। बिकॉज डायरेक्ट पेंटिंग वो है जो कि इलस्ट्रेशन बेस्ड हो जाएगी, जिसमें आपको पता चल रहा है दैट ये दो फिगर्स हैं, ये कर रहे हैं, दे आर डूइंग दिस एक्टिविटी, दे आर इन्वॉल्व इन दिस वर्क। बट जब आप सिंबल्स यूज़ करते हैं तो आपकी जो पेंटिंग है वो इनडायरेक्ट हो जाती है, और हिडन आइडियाज़ उसमें आ जाते हैं। उसमें एक सीक्रेसी आ जाती है और हिडन मीनिंग होता है जिसको आपने decode करना होता है, if you have a better understanding of colors and if you have a better understanding of symbols and elements. So that's it. I hope that in today's lecture you have gained some knowledge relevant to the symbols, visual symbols. और आपने जो है एक असाइनमेंट भी प्रिपेयर करनी है by using a symbol in your self portrait, and it will be self explanatory. Okay, thank you.